Hello friends, welcome back to my channel. Ravi sir again welcoming you all. हम लोग पढ़ रहे हैं chapter 3 inheritance and variation, very interesting concept in biology. और आज हम लोग टच करने वाले हैं जिन टॉपिक्स को देख लेते हैं उसके बारे में। तो आज हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं अबाउट द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिनकी वजह से जेनेटिक्स फील्ड इंट्रोड्यूस हुआ था। द लाइफ स्केच ऑफ मेंडल, द पर्सन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द फील्ड कॉल्ड जेनेटिक्स। उनका टाइमलाइन देखेंगे, क्या कौन सा वर्क किया था, कौन से साल में, और मेंडल का जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट था दैट इज ऑन पी प्लांट, उसके बारे में ब्रीफिंग करेंगे। फिर रीजन देखेंगे, व्हाट इज द रीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ द गार्डन पी, और साथ में देखेंगे कि वो कौन से 7 कैरेक्टर थे जिनको मेंडल एक्चुअली स्टडीड इन हिज यू कैन सी व्हाट गार्डन। देन बेसिक मेथोडोलॉजी एंड रिजल्ट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सी मेंडल ने फिर प्रपोज किया 4 स्टेटमेंट्स, पोस्टुलेट्स, और उसके बेसिस पे 3 यू कैन सी व्हाट फेमस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है मेंडल ने डिराइव किए। ओके, देन रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस को हम लोग टच करेंगे, और लास्ट में व्हाट काइंड ऑफ क्रेडिट हैज बीन गिवन टू मेंडल्स वर्क, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे। तो रेड स्टूडेंट, तो चलिए एक एक करके, तो सबसे पहले देखते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, नन अदर देन ग्रेगोर जोहानन मेंडल। ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था रिगार्डिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एज वी नो इज द process of transmission of characters from parents to offsprings, yeah, from one generation to next and so on. He was an Austrian botanist, very much interested in botany. He was a gardener and he was a monk because he was attached to a monastery. Okay, 1822 to 1884. So he gave the first scientific explanation in 1866, the form of a paper. उसके बारे में कैसे उन्होंने ये काम किया, ओके, कहाँ पे सबमिट किया अपने वर्क को, उसके बारे में देखेंगे। ओके, and he laid the basic laws of heredity, means inheritance के basic नियम जो है वो सबसे पहले scientifically prove किए with the help of experiments. And his classical experiment was the classical hybridization experiment on the pea plant. Okay, that we know in the lower standard में आपने एक ऐसी brief में मेंडल के वर्क को भी देखा है। तो आज हम लोग थोड़ा सा और कुछ एडिशनल चीजों को कंसिडर करेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस, तो सिंस ही वाज द इंट्रोड्यूसर ऑफ the genetics, he is also called the father of modern genetics. The students, very inspiring personality. He was a genius of his time, और इस जीनियस को अल्टीमेटली रिकॉग्निशन उनके डेथ के बाद मिला है। तो वही हम लोग आज टच करेंगे, ऐसा कैसे हो गया। तो he was an Augustinian priest attached to a monastery. And he was a teacher, he was a naturalist, studying about the natural phenomena. Okay, not only living but also non-living aspects को mathematician से, he was a teacher, mathematics scientist. Okay, he was a botanist and very good in breeder because he was fond of gardening. Okay, और जो चर्च, जिस चर्च के वो प्रीस्ट थे, उसी चर्च के पीछे देयर वाज अ स्मॉल स्पेस, एंड इसी स्पेस में उन्होंने अपना गार्डनिंग का जो हॉबी था उसको मेंटेन रखा, और उस वहां पे ही उन्होंने पी प्लांट पे फेमस एक्सपेरिमेंट किया। He was also a meteorologist studying about the, you can see, climate and weather changes. That's why you can see he's called father of genetics, because he was the introducer of the field genetics because of his famous work जिसको Mendelism कहते हैं। The Mendelism is the first phenomena, okay, which gives the concrete explanation about the pattern of inheritance and the causes of variation. चलिए, तो अब ब्रीफ लाइफ स्केच देखेंगे मेंडल का। ओके, कि मेंडल के लाइफ का जो जर्नी था वो कैसा था, एंड स्पेशल नोट टू हिज क्लासिकल वर्क। तो 1822 he was born to a poor farmer in Austria, the village Hizzendorf. Then 1835 को he has to leave the school education because of the poverty, but his school teacher actually found him to be very genius and very intelligent. Okay, so they continued his education and he joined church as a monk at Brunn, that is Austria, in 1843, और इस बीच में he continued his school education. Then 1847 को he became the head of the Augustinian monastery at the Brunn, that is Austria, और आज ये जो है चेकोस्लोवाकिया, अभी चेकोस्लोवाकिया एक्चुअली दो कंट्री में सेपरेट हो गया है, तो चेजिया, ओके, प्रेजेंटली इट इज इन चेजिया, ब्रुनो। Then 1851 he went to the University of Vienna to study natural history, physics and mathematics.
of 1856 or 1865. He was back, you can see, in Australia, and he worked as a teacher in natural history and mathematics क्योंकि उनका specialty था. और इसी दौरान he also performed the classical breeding experiment on pea plant to study the inheritance. So he was not only working as a teacher, he was also working as a, you can see, priest, and at the same time he performed the breeding experiment on the pea plant, and whatever result he got during this, you can see, years of experimentation, that is 1856 से 1865, okay, तो सारे रिजल्ट को उन्होंने अल्टीमेटली 1866 को पब्लिश किया. एंड बट एट दैट टाइम यू कैन सी nobody recognized his work क्योंकि his findings was much ahead of his time, and he ultimately died on 1884, 6 Jan 1884 he died in Brno, Czechia. So present Czechia, previously it was Czechoslovakia. Okay, now so तो अल्टीमेटली, तो अगर हम उनके वर्क को देखेंगे तो 1856 टू 1864 मेंडल ने परफॉर्म किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी, दैट इज पीसम सैटिवम, साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम. और 1865 को ही पब्लिश्ड हिज ऑब्जर्वेशन, तो पहला ऑब्जर्वेशन जो रिजल्ट उन्होंने ऑब्टेन किया, ओके, उनको नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन विद द टाइटल ट्रांसलेशन ऑफ द कैरेक्टर. ओके, so he published his first observation result in 1865, and in 1866 he published his main research paper in a German magazine that, okay, उस पेपर का नाम था, okay, Versia Liber Planzen Hybridum, या उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो it is an experimentation in plant hybridization, the famous classical experiment. और ये पब्लिश हुआ था इन जर्मन मैगजीन द नेचर फॉर शेंडरवेरिन in annual proceeding of the Natural History Society of Brunn. Okay, तो ब्रन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में नेचुरली हर साल में जो इम्पोर्टेंट साइंटिफिक काम होते थे, ओके, उसको पब्लिश किया जाता था. So this was related to the work which he did and the publishing of his experiments, but his work remained unnoticed for a long time. Okay, why? तो रीजन क्या है? What is the reason that मेंडल का वर्क इतना अच्छा, you can see, work was not recognized during his life time? Because Mendel Classical remains unnoticed for 34 years because of three main reasons. कि the scientific world उस दौरान 1859 के दौरान, यानी कि when Mendel actually was performing the experiment and deducing the pattern of inheritance, उस टाइम पे दुनिया में डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन की बहुत चर्चा हो रही थी. तो एवरीबडी वाज मोर इंटरेस्टेड ऑन द डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन, ओके, व्हिच वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड, यू कैन से, थियरीज ऑफ इवोल्यूशन एट दैट टाइम. ओके, अब अभी हमको मालूम है कि प्रेजेंटली वी आर एक्चुअली फॉलोइंग द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी व्हिच इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द डार्विन थ्योरी इटसेल्फ. ओके, और साथ में द प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन, ये जो यू कैन सी मैगजीन था, ओके, इट वाज हैविंग लिमिटेड सर्कुलेशन. ओके, तो ज़्यादा कॉपीज नहीं जाती थी लोगों के पास, तो रीडिंग वाज वेरी मच लिमिटेड. और दूसरा, मेंडल्स कंक्लूजन अबाउट हेरिडिटी was ahead of his time, hence was not given due recognition. So whatever you can see what results Mendel published, so it was not recognized, it was not accepted at that time by his counterparts. Okay, क्योंकि at that time you can see ब्लेंडिंग टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को ज़्यादा करेक्ट माना जाता था, और मेंडल के इनहेरिटेंस पैटर्न जिसके हिसाब से यू कैन सी व्हाट यू हैव गॉट लॉ ऑफ डोमिनेंस, यू हैव गॉट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके, इट वाज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर साइंटिस्ट, सो दैट्स व्हाई ही वाज नॉट गिवन रिकॉग्निशन. And ultimately, because of this, Mendel died in 1884 before his work came to be recognized. But ultimately, his work was rediscovered in 1900, the famous year of rediscovery. Okay, तो देर आए दुरुस्त आए ऐसी बात हो सकती है. तो तीन साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली मेंडल के वर्क को वापस एनालिसिस किया और फिर रीडिस्कवर किया द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी विच वाज ऑलरेडी वर्क बाय मेंडल. तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स से मिलते जुलते थे, एंड ही फाउंड दैट मेंडल ने जो भी प्रिंसिपल्स
एक्चुअली प्रपोज किए हैं, इट वाज फाउंड टू बी यू कैन सी यूनिक एंड करेक्ट, एंड दैट्स व्हाई ही पब्लिश्ड यू कैन सी हिज वर्क, एंड दुनिया के सामने मेंडल का छुपा हुआ वर्क है फिर से सामने आ गया. तो क्रेडिट गोज टू दीज थ्री साइंटिस्ट. पहला ह्यूगो डी वियर्स, हॉलैंड एंड यू नो ओके, दिस इज द पर्सन जिन्होंने इवोल्यूशन का म्यूटेशन थ्योरी भी प्रपोज किया. ह्यूगो डी वियर्स फ्रॉम हॉलैंड, देन कार्ल कोरन, ही वाज आल्सो ए जेनेटिस्ट, ओके, जर्मनी के, and Eric Tismark, that is from Austria. So these three scientists have to be given due credit because उन्होंने मेंडल को गायब होने से ओके बचा लिया और उनके क्रेडिट को मेंटेन रखा. ओके, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी वी आर able to appreciate the work of what Mendel. Okay, तो वो चीटिंग भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. दे कुड हैव टेकन द क्रेडिट themselves, बट नहीं, दे ड्यू बिकॉज ऑफ देयर यू कैन सी व्हाट ऑनेस्टी. मेंडल वाज given the due credit of the first you can say scientist who gave the scientific explanation of inheritance and साथ में variation also. चलिए, तो अब देखते हैं कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ओके, उसको नट शेल में देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे, बिकॉज इन द अपकमिंग वीडियोस वी आर गोइंग टू लर्न सम ऑफ द यू कैन सी बेसिक एक्सपेरिमेंट. मोनोहाइब्रिड रेशियो, डाइहाइब्रिड रेशियो तो मेंडल ने किए थे ऑन द पी प्लांट, उसको डिटेल में देखने वाले ही हैं. ओके, अभी हम लोग शॉर्ट में देखेंगे मेंडल ने एक्चुअली पी प्लांट के साथ कौन से एक्सपेरिमेंट किए. So this was the plant which was selected by Mendel, Pisum sativum, the garden pea plant. Okay, उसके देखो दो टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, तो वायलेट या पर्पल बोलिए और व्हाइट कलर का फ्लावर्स. ओके, एंड द सेम वे तो मेंडल वाज वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फैक्ट दैट पी प्लांट में कंट्रास्टिंग फैक्टर्स है. ओके, एंड दो ही हर कैरेक्टर के दो ऑप्शंस है. ओके, इंटरमीडिएट नहीं है, एंड दैट फैसिनेटेड मेंडल एंड ही ट्राइड टू यू कैन सी व्हाट explore this characteristic to explain the pattern of inheritance. Okay, so देखते हैं. So he conducted hybridization experiment on garden peas, Pisum sativum. उसका 2n number is 14, यानी कि P has 14 chromosomes. Okay, तो 2 set हो गया 7 you can see pairs of chromosomes. तो what are the basic steps जो मेंडल ने actually follow किया? तो इट वॉज ए डेलिबरेट मीटिंग या क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि एक कैरेक्टर अपोजिट कैरेक्टर के पेरेंट्स को उसने सिलेक्ट किया एंड ही एनालाइज द कैन सी व्हाट ऑफस्प्रिंग्स ओके इन ए यूनिक मैनर टू गेट द रिजल्ट. ओके, सो सबसे पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट. यही सबसे बड़ा यू कैन सी व्हाट स्टेप या सक्सेस का रीजन था. ही selected for a particular you can see analysis, he selected the two pea plants with contrasting character. यानी कि फादर और मदर यानी कि मेल और फीमेल पेरेंट्स शुड हैव द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एंड उन्होंने एक ही कैरेक्टर को एक बार कंसिडर किया. ओके, या दो कैरेक्टर को एक बार कंसिडर किया, क्योंकि बाकी के जो साइंटिस्ट जिन्होंने सिमिलर टाइप के एक्सपेरिमेंट किया था दे यूज्ड टू कंसिडर द होल प्लांट ओके एज ए यानी कि ऑल द कैरेक्टर एज ए सिंगल एंटिटी. बट मेंडल ने एक पी प्लांट को जब सिलेक्ट किया तो एक टाइम में एक ही कैरेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट किया, फिर दो कैरेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट किया, फिर तीन कैरेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट किया, एंड दैट्स व्हाई ही गॉट ए कंसिस्टेंट व्हाट रिजल्ट. और फिर इन ऑर्डर टू यू कैन सी व्हाट एश्योर दैट मेल पेरेंट्स का पोलन फीमेल पेरेंट पे ही जाना चाहिए, ही परफॉर्म द इंपॉर्टेंट यू कैन सी व्हाट प्रोसेस कॉल्ड इमैस्कुलेशन. द इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन. और इस जो प्लांट है इट वाज कंसीडर्ड टू बी द फीमेल प्लांट. तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ ब्रीडिंग. अगर हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं तो इमैस्कुलेशन इज मैंडेटरी. फिर क्रॉस पोलिनेशन किया तो दूसरे पेरेंट मेल पेरेंट के पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करके इट वाज ट्रांसफर्ड टू द इमैस्कुलेटेड फीमेल पेरेंट. ओके, एंड देन he obtained the F1 generation because the female parent का जो फ्लावर है उसको बैगिंग किया, कवर किया टू प्रिवेंट यू कैन सी अनवांटेड पॉलिनेशन, और साथ में उसको टैग भी किया, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिखा. दैट इज द बेसिक यू कैन सी व्हाट प्रोटोकॉल इन परफॉर्मिंग द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट. और फिर जितने भी यू कैन सी फ्लावर फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गए, दैट इज अ पॉड, उसके सारे सीड्स को कलेक्ट किया, सारे सीड्स को सॉइल में डाला, जेनरेट किया, एंड जेनरेट करने के बाद जो भी प्लांट्स ऑब्टेन हुए उनके कैरेक्टरिस्टिक को एनालिसिस किया. तो ऑब्टेनिंग तो द गिवन पेरेंट कंट्रास्टिंग पेरेंट्स के मेटिंग या क्रॉसिंग करने से जो इंडिविजुअल तैयार होते हैं दे आर कॉल्ड F1 जनरेशन एज वी नो.
और फिर F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स को आपस में सेल्फ क्रॉस किया, उससे ऑब्टेन हुआ F2 जनरेशन, दैट इज सेल्फिंग ऑफ F1 F1 offsprings to obtain what F2 generation. So this was the basic protocol or basic step of Mendel's hybridization experiment. एक बार फिर से देख लेते हैं. First is selection of the parent having contrasting character. उसके बाद में emasculation. तो one of the parent is considered male. तो male individual के पोलन लिए जाएंगे और दूसरा जो पेरेंट है that will be considered as the female. तो उसके एंथर को निकाल दिया जाएगा so that you can say खुद के पोलन उस फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर नहीं होना चाहिए. तो दिस विल इंश्योर दैट ए मेल पेरेंट के एंथर एक कॉरस्पॉन्डिंग फीमेल एकेंसी पेरेंट के स्टिग्मा पे ही ट्रांसफर हो रहा है. देन क्रॉस पोलिनेशन बिटवीन द टू सेलेक्टेड पेरेंट और बाद में इससे ऑब्टेन होता है F1 जनरेशन एंड F1 जनरेशन की सेल्फिंग से बनता है F2 जनरेशन. ओके, तो दिस वाज द बेसिक स्टेप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन या क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ मेंडल. अब देखते हैं कि पी प्लांट के कौन कौन से कैरेक्टर को मेंडल ने स्टडी किया. तो ही स्टडीड यू कैन सी 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. ओके, तो इसमें पहला कैरेक्टर था हाइट. तो एंड फॉर दैट पी प्लांट में अगर पी प्लांट को ग्रो करेंगे तो दो टाइप के पी प्लांट आर एक्चुअली ऑब्टेन, टॉल एंड शॉर्ट. तो टॉल इज डोमिनेंट एंड शॉर्ट इज रिसेसिव. तो हु इज डोमिनेंट एंड हु इज रिसेसिव? इट वाज ऑब्टेन्ड बाय द रिजल्ट ऑफ द hybridization, you can see what experiment. So only after hybridization experiment जो उन्होंने किया, whatever result he got with the height, the same result he got with the other character. तो सीड के दो कैरेक्टर चूज किए, सीड का शेप, सीड का कलर. फिर पॉट दैट इज फ्रूट, फ्रूट का शेप, फ्रूट का कलर. देन फ्लावर के भी दो कैरेक्टर, फ्लावर पोजीशन एंड फ्लावर कलर. तो अल्टीमेटली ही checked the four, you can see what structure of the plant. Four structure कैसे? height of the stem, seed, pod that is fruit and the flower. और height का एक ही एस्पेक्ट है, that is you can see the length. Then seed के दो एस्पेक्ट स्टडी हुए, shape and color. pod के दो एस्पेक्ट स्टडी हुए, shape and color. Then flower के दो एस्पेक्ट स्टडी हुए, position of the flower and the color of the flower. Okay, and after you can see performing the experiment for all these 7 character, he got the same result or almost similar result. Okay, he found that out of these two contrasting character जो हमें दिख रहा है, one is dominant and other is recessive. तो height में dominant है tall, seed shape में dominant है round, seed color में dominant है yellow, pod shape में dominant है inflated, pod color में dominant है green, flower position में dominant है axial and flower color में dominant है colored, that is violet color to be more precise. और फिर जो opposite you can see character है या trait है, that is recessive, that है height में short या dwarf is the recessive character, seed shape में wrinkled जो शेप है वो रिसेसिव कैरेक्टर है. सीड कलर, अभी सीड कलर इज एक्चुअली कॉटिलेडॉन कलर, ओके, ऑफ द सीड, वो ग्रीन कलर रिसेसिव है. पॉड शेप में कंस्ट्रक्टेड पॉड इज रिसेसिव, पॉड कलर में येलो पॉड इज रिसेसिव, फ्लावर पोजीशन में टर्मिनल पोजीशन इज रिसेसिव एंड फ्लावर कलर में व्हाइट कलर इज व्हाट? रिसेसिव. तो he got the same result because he performed separate experiment for height, seed shape, seed color, pod shape, pod color, flower position and flower color. That chart also we are going to see in the later part of today's video. Now at the same time, so this is the chart, you can see, you can you have to prepare this chart so that you can see you will be able to answer every question related to the 7 कैरेक्टर कि भाई डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है. और मेंडल ने सिंबॉलिक फॉर्म भी यूज किया, सिंबल्स से रिप्रेजेंटेशन किया. तो that was also a very important aspect of the Mendel success. He represented the cross with the help of symbolic representation. और उसने एक्चुअली एक रूल यूज किया कि डोमिनेंट के लिए कैपिटल लेटर यूज करेंगे फॉर द डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव के लिए कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर यूज करेंगे. जैसे स्टेम हाइट में डोमिनेंट है टॉल, तो उसके लिए कैपिटल टी साइन, और ड्वार्फ दैट इज शॉर्ट उसके लिए स्मॉल टी साइन. फिर फ्लावर कलर में नेचुरली वायलेट डोमिनेंट है, तो दैट्स व्हाई कैपिटल वी साइन फॉर द वायलेट कलर, और रिसेसिव के लिए है स्मॉल वी साइन. फ्लावर पोजीशन में एक्सियल फ्लावर इज डोमिनेंट, दैट्स व्हाई कैपिटल ए साइन, एंड रिसेसिव के लिए है स्मॉल ए साइन. फिर पॉड शेप, फ्रूट का शेप इन्फ्लेटेड इज द डोमिनेंट, दैट्स व्हाई कैपिटल आई, और रिसेसिव के लिए स्मॉल आई. पॉड कलर में ग्रीन कलर इज डोमिनेंट, दैट्स व्हाई कैपिटल जी रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंट, you can say trait for the pod color, and yellow जो है वो recessive है, that is small g. Its seed shape,
When round is dominant, that was capital R, or recessive is the wrinkled shape, that's why small r. And seed color, that is cotyledon color में yellow is dominant, that's why capital Y. And recessive जो है वो है ग्रीन सीड कलर, दैट्स बाय स्मॉल y. ओके, तो एकदम सिंपल उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया. फॉर द डोमिनेंट, द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट ट्राइट in capital will be symbol of dominant character, and recessive will be the corresponding small letter. Okay, so this was the Mendel, you can see what rule which he prepared to represent the triads. चलिए अब देखते हैं कि why Mendel selected the green pea plant only, या garden pea भी कहते हैं. तो pea plant जो है, it is an annual plant. तो annual plant किसको कहते हैं? तो अगर कोई भी प्लांट अपना लाइफ साइकिल एक साल के अंदर कंप्लीट करता है, यानी कि इफ यू टेक ए सीड, यू पुट इन द सॉइल, इट विल जर्मिनेट, इट विल ग्रो, ओके, टू फॉर्म ए मेच्योर प्लांट, फिर वो फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, फिर उसका पॉलिनेशन होगा, फिर उसका सीड्स तैयार होगा. तो सीड बनने तक, ओके, एक सीड जर्मिनेट करने के बाद प्लांट अपना रिप्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट करके जब सीड्स नेक्स्ट यू कैन सी व्हाट सीड बनाता है, तो उस पीरियड को उसका लाइफ साइकिल कहा जाता है. ओके, तो पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल है एक साल के अंदर कंप्लीट होता है, दैट्स व्हाई इट्स एनुअल प्लांट. और वो शॉर्ट है, तो पूरा 12 महीने नहीं लगाता है, 3 to 4 मंथ में पी प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है. एंड एज अ रिजल्ट, because of this short lifespan, he could grow 3 generation, at least 3 generation in a year. तो एक साल में 3 जनरेशन को वो स्टडी कर पाए. ओके, अगर किसी भी दूसरे अगर एनिमल्स को यूज किया जाए तो उनको हैंडल करना मुश्किल है, करेक्ट नो, और उनका लाइफ स्पैन भी लॉन्ग रहता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल भी लॉन्ग रहता है. लेकिन प्ली प्लांट जो है उसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होने की वजह से इन सिंगल ईयर 3 जनरेशन कैन बी स्टडीड. So pea plants, दूसरा you can see reason है कि pea plant are easy to cultivate and handle and they are available in pure variety. तो pure variety वो होता है जिसके पास दोनों जीन्स या तो डोमिनेंट होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, या दोनों जीन्स क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं. ओके, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग प्योर वैराइटीज कहते हैं. तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, बिकॉज मेंडल यूज सम न्यू जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज, ओके, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं. So pea plant is also a small herbaceous plant. So you can reach to the, you can see what, every flower very easily. Okay, क्योंकि अगर plant बहुत ही tall होगा तो it will not be possible to reach to each and every flower. क्योंकि आपको हर flower का अगर result चाहिए तो naturally you should be able to handle that, you can see, flower more easily. So pea plant is a small herbaceous plant that produces many viable मतलब the seed which is able to germinate, which has a embryo, live embryo. So he could grow thousands of pea plant in a small plot behind the church. तो 90 by 9 का 70 मीटर बाय 9 मीटर का एक प्लॉट था चर्च के पीछे. तो इसी बैक यार्ड बोलते हैं उसको, बैक यार्ड में जो है उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए. और पी प्लांट नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर है. तो पी प्लांट इज ए नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग flower and was available in the form of many varieties with contrasting character. तो इस contrasting character कौन कौन से थे ये हमने अभी देख लिया है. 7 contrasting character were there and there was no intermediate character. जैसे हाइट या तो टॉल था, नहीं तो ड्वार्फ था, मीडियम हाइट नहीं था. ओके, तो अगर फ्लावर का कलर देखेंगे तो वायलेट था और या व्हाइट होगा, यानी कि वन पी प्लांट विल प्रोड्यूस आइदर violet color flower or purple color flower, or you can see what, white color, but not the, you can see, intermediate, you can see color. जैसे सीड का शेप भी या तो राउंड होगा नहीं तो रिंकल्ड होगा, इंटरमीडिएट नहीं होगा. सो दैट वाज वन ऑफ द लक फैक्टर आल्सो फॉर द मेंडल. ओके, देन फ्लावर्स आर लार्ज इनफ, ज्यादा छोटे भी नहीं है ज्यादा बड़े भी नहीं है, तो आसानी से इमैस्कुलेशन हो सकता है. और इट कैन बी इजीली क्रॉस पोलिनेटेड ओनली मैन्युअली, यानी कि ये ह्यूमन एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस पोलिनेशन. ओके, और इमैस्कुलेशन प्रोसेस इज वेरी इजी, ओके, फॉर पीपल. एंड हाइब्रिड्स जो तैयार होते हैं, जब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल्स की हम लोग मैनेज करते हैं या क्रॉसिंग करते हैं, तो इंडिविजुअल विच इज क्रिएटेड, द ऑफस्प्रिंग विच इज क्रिएटेड इज जनरली कॉल्ड हाइब्रिड्स. इन केस ऑफ मेंडल द हाइब्रिड्स आर फर्टाइल एंड दे आल्सो प्रोड्यूस वायबल सीड, यानी कि दे कैन आल्सो रिप्रोड्यूस, और उनके जो सीड्स है दे आर आल्सो एबल टू व्हाट, जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी दिस. ओके, रीजन की वजह से मेंडल सेलेक्टेड व्हाट, गार्डन पी प्लांट. चलिए अब देखते हैं बेसिक मेथोडोलॉजी एंड रिजल्ट जो उन्होंने क्रॉस किया. तो ये जो क्रॉस हम लोग दिखा रहे हैं इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं. ओके, और ये जो मेथोडोलॉजी है ये है कंसिडरिंग सिंगल कैरेक्टर, जिसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. ओके,
because we have to understand how he derived, you can see what different laws, तो उसको लिए उन्होंने क्रॉस किया था. तो this is the representation of a monohybrid cross. Okay, तो एग्जांपल क्या है, क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट. तो यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है एक टॉल पी प्लांट के, प्योर टॉल पी प्लांट की शादी या मेटिंग या क्रॉसिंग किया है एक ड्वार्फ पी प्लांट के साथ. ओके, तो उससे नेचुरली जो ऑफस्प्रिंग्स तैयार हुए, ही फाउंड कि टॉल और ड्वार्फ की शादी करने से सारे बच्चे जो पैदा हुए दे वर ऑल टॉल. दैट वाज वेरी यूनिक. ओके, उसी तरह राउंड सीड की शादी येलो सीड से की, सारे के सारे बच्चे क्या है आपके राउंड सीड के मिल रहे हैं. ओके, तो राउंड की शादी, सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया, राउंड सीड्स की शादी जब रिंकल्ड सीड्स के साथ की तो सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग तैयार हुए दे वर हैविंग द राउंड सीड. तो इसका मतलब है यू कैन सी सम कॉमन पैटर्न से क्या है इनहेरिटेंस हो रहा है. फिर उन्होंने यू कैन सी व्हाट येलो सीड की शादी ग्रीन सीड से की और इस बार सारे बच्चे जो है येलो सीड वाले प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो इस तरह सातों कैरेक्टर के साथ सेम काइंड का ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट उन्हें मिला और दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू यू कैन सी गिव हिज स्टेटमेंट्स या पोस्टुलेट्स. उसके बेसिस पे 3 लॉज फिर फाइनली उन्होंने प्रपोज किए. तो फिर सारे टॉल थे. तो मेंडल वाज वेरी मच यू कैन सी व्हाट जीनियस. तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये जो इंडिविजुअल टॉल दिख रहे हैं दे मस्ट नॉट बी प्योर, क्योंकि दे हैव बीन क्रिएटेड बाय मैरिज बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ. दे मस्ट बी हैविंग द फैक्टर ऑफ ड्वार्फनेस. तो ही यूज्ड द वर्ड कॉल्ड फैक्टर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ओके, हम लोग अभी बाद में देखेंगे. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी टॉल इंडिविजुअल्स हैं उनकी आपस में सेल्फिंग की. तो सेल्फिंग करके जो उनको रिजल्ट मिला दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. So by selfing of F1 hybrids, he obtained the F2 generation. So what he got? So he got 75% dominant character, that is the tall character, and 25% he got the recessive character. Yani ki out of 4, 3 plants were found to be tall and 1 plant was found to be what? Dwarf. Okay, and this ratio, this important ratio is called the Mendelian ratio, the monohybrid ratio, जो है 3:1, यानी कि 3 डोमिनेंट कैरेक्टर वाले और एक रिसेसिव कैरेक्टर वाला इंडिविजुअल यू कैन सी ऑब्टेन होगा. ओके, and then when he applied the same you can see what process with all other 7 character and he got the same result in every cross, in every monohybrid cross for the 7 character he got the same result. The ratio of 3:1 was obtained in F2 generation for every character he studied. तो सातों कैरेक्टर में उसको सेम रिजल्ट मिला. and this is what is the summarization of his monohybrid cross. okay, तो फर्स्ट कॉलम में आपको क्या दिख रहा है, सीड शेप. So he finally obtained, you can see 5,474 round seeds and 1,850 wrinkled seed. और अगर इसका हम लोग simplified ratio निकालेंगे तो that is 2.98:1, almost 3:1 का रेशियो आया है. ओके, तो इस तरह बाकी के जितने भी कैरेक्टर स्टडी किया. चेक, यह फ्लावर कलर देखेंगे तो 705 पर्पल फ्लावर्स मिला F2 जनरेशन में एंड 224 व्हाइट फ्लावर्स मिले. यहाँ पे भी रेशियो देखिए आपको कितना मिल रहा है, 3.15:1. मतलब ऑलमोस्ट यू कैन सी इट इज 3:1 रेशियो. देन फ्लावर पोजीशन का देखेंगे तो 651 यू कैन सी व्हाट एक्सियल यू कैन सी फ्लावर्स मिले और 207 जो है वो टर्मिनल फ्लावर्स मिले. यहाँ पे भी रेशियो देखिए 3.14:1. इन एवरी केस द रेशियो इज वेरी क्लोज to 3:1 रेशियो, यानी कि 75% डोमिनेंट कैरेक्टर, 1% और 25% व्हाट रिसेसिव कैरेक्टर. और जो टॉल प्लांट्स उन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने टॉल और एक ऐसी ड्वार्फ के बीच में किया था. तो 787 टॉल प्लांट्स ऑब्टेन हुए और 277 ड्वार्फ पी प्लांट ऑब्टेन हुए. तो यहाँ पे रेशियो मिलता है 2.84, ऑलमोस्ट यू कैन सी. इसको अगर हम लोग राउंड अप करेंगे तो नेचुरली आपको मिलेगा 3:1 का रेशियो. तो इन एवरी यू कैन सी व्हाट कैरेक्टर, तो सातों के सातों कैरेक्टर का जो रेशियो मिल रहा है F2 जनरेशन में, इट वाज अबाउट 3:1 रेशियो एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी हिज रिजल्ट्स वर एक्चुअली कमेंडेबल. ओके, और इसी बेसिस पे ही एक्चुअली डेवलप्ड 4 पोस्टुलेट्स एंड द 3 लॉज. चलिए अभी मेंडल इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे कि उन्होंने क्या बोला इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में. So what is the observation? So Mendel performed experiment of garden pea as we have studied in a very scientific manner
and proposed postulates or principle which are now popularly known as Mendel's law of inheritance. तो 3 नियम मेंडल के सबसे ज्यादा फेमस है और मेंडल वाज द फर्स्ट वन, तो ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया था दैट द कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ ए पार्टिकल, और इस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया था फैक्टर्स। ओके, तो इस कंसेप्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, जब जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इन्हीं फैक्टर्स को, एंड मेंडल वाज नॉट नोइंग कि व्हाट इज दैट फैक्टर, वेदर इट इज अ केमिकल एस्पेक्ट or whether it is a physical aspect, but he actually what use a common, you can see what थॉट की फैक्टर होने चाहिए, सम पार्टिकल्स मस्ट बी प्रेजेंट, और इन्हीं पार्टिकल्स को टुडे वी हैव आइडेंटिफाइड एज जीन्स, एंड जीन्स वी नो इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए। और मेंडल वाज वेरी जीनियस, मच अहेड ऑफ हिज टाइम, एंड ही हैज गिवन दिस कांसेप्ट ऑफ फैक्टर। और ये जो कांसेप्ट ऑफ फैक्टर मैंने पहले बोला, अभी आपको बोला कि इट वाज अ वेरी बोल्ड, यू कैन सी व्हाट स्टेटमेंट, कि देयर आर सम पार्टिकल्स व्हिच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टुवर्ड ऑफस्प्रिंग, एंड दिस पार्टिकल्स आर नथिंग बट जीन्स। ओके, तो बिफोर द डिस्कवरी तब माइटोसिस मालूम नहीं था, मियोसिस मालूम नहीं था, क्रोमोसोम्स के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, और क्रोमोसोम ही मालूम नहीं है तो जीन्स के बारे में तो अल्टीमेटली नॉलेज ही नहीं होगा, एंड विदाउट द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। तो सच यू कैन सी जीनियस अहेड ऑफ हिज टाइम, यू कैन सी, that's why rightly you can see Mendel is called as the father of what? Genetics. चलिए, तो मेंडल, अब देखते हैं कि मेंडल के वो कौन से 4 पोस्टुलेट्स थे या प्रिंसिपल्स जो उन्होंने प्रपोज किया बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट। तो पहला पोस्टुलेट जो उन्होंने बोला कि एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर। इसका मतलब है देयर आर 2 कंट्रास्टिंग अलील्स ऑफ ए गिवन जीन। अगर मॉडर्न के हिसाब से देखेंगे, इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो आज के कंसेप्ट के हिसाब से हर जीन जो है उसके 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म्स होते हैं जिसको अलील्स कहते हैं। तो इनके बारे में अलील क्या होता है, जीन क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट यू कैन सी व्हाट एपिसोड में चेक करने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर, यानी कि कोई भी कैरेक्टर लो उसको कंट्रोल करने के लिए 2 कंट्रास्टिंग फैक्टर होते हैं, क्योंकि कैरेक्टर में 2 टाइप्स होते हैं, एक डोमिनेंट ट्रैट होता है और एक रिसेसिव ट्रैट होता है। यही है सेकंड पोस्टुलेट, आउट ऑफ 2 कंट्रास्टिंग फैक्टर अलील, one factor is strong and other factor is what? Weak. That is the most important, एक नया कंसेप्ट उन्होंने किसी इनहेरिटेंस का सामने रखा था। ओके, क्योंकि 2 कैरेक्टर में से एक स्ट्रांग है और एक वीक है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला डोमिनेंट फैक्टर, ओके, और रिसेसिव फैक्टर को कंट्रोल करने वाला, रिसेसिव ट्राइट को कंट्रोल करने वाला रिसेसिव फैक्टर। एंड देन थर्ड पोस्टुलेट है the two contrasting factor remains together in a hybrid। तो it was also his geniusity, उन्होंने बोला कि जो हाइब्रिड है उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों फैक्टर होने चाहिए, यानी कि इफ एन इंडिविजुअल इज बोर्न फ्रॉम ए टॉल एंड ए ड्वार्फ इंडिविजुअल पेरेंट, ओके, यानी कि अगर एक ऑफस्प्रिंग के जो फादर है और मदर है वो दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के हैं, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो उस ऑफस्प्रिंग में टॉलनेस का फैक्टर भी आया होगा और ड्वार्फनेस का फैक्टर भी आया होगा, बट दीज 2 फैक्टर विल रिमेन विदाउट मिक्सिंग एंड सेपरेट्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो दैट वाज आल्सो हिज इंट्यूशन कि ऐसा ही होना चाहिए। ओके, और फोर्थ पोस्टुलेट है द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू द इनहेरिटेंस ऑफ एनी अदर कैरेक्टर, यानी कि एक कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन है उसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो दूसरे किसी कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि एवरी कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू द अदर कैरेक्टर, यानी कि हाइट कलर पे डिपेंड नहीं करता है, कलर शेप पे डिपेंड नहीं करता है, फ्लावर का कलर सीड के कलर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि एवरी कैरेक्टर, अभी कौन सा कैरेक्टर एक इंडिविजुअल में आएगा तो वो डिपेंड करता है कि उसे कौन से फैक्टर्स मिले हैं, मतलब फादर से कौन सा फैक्टर मिला है और मदर से कौन सा फैक्टर मिला है, तो दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि व्हाट विल बी द हाइट, व्हाट विल द कलर, व्हाट विल शेप एंड अदर कैरेक्टर्स। Okay, students. Now, on the basis of these 3 postulates, the Mendel devised the 3 laws of inheritance, जिसके बारे में डिटेल में स्टेटमेंट वाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो पहला लॉ जो है, दैट लॉ इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ रिसेसिवनेस। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। तो मेंडल का जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट था उसको कंबाइन करके, उसको यूज करके ये नियम प्रपोज किया। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, क्योंकि हर गैमेट में कोई एक ही फैक्टर जाएगा, या तो डोमिनेंट जाएगा या रिसेसिव जाएगा, दैट्स व्हाई गैमेट्स आर प्योर, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इट इज बेस्ड ऑन थर्ड पोस्टुलेट, एंड द थर्ड लॉ
is based on fourth postulate जिसको कहते हैं law of independent assortment. मतलब every character is independent to other character. Okay, so we have to learn, you can see the first law, second law and third law in detail. So that will be, you can see, learned in the subsequent videos with the help of example. Okay, चलिए अब देखते हैं कि what made the Mendel success so relevant. तो मेंडल के सक्सेस का रीजन क्या है? ओके, तो सबसे पहला है कि उनका जो बेसिक मेथोडोलॉजी जो उन्होंने यूज किया, इट वाज वेरी सिंपल बट केयरफुली प्लान्ड एंड इन्वॉल्व्ड एम्पल क्रॉसेस. तो मेंडल ने बहुत सारे क्रॉसेस किए. ओके, ही आल्सो परफॉर्म रेसिप्रोकल क्रॉसेस, यानी कि टॉल का शादी डॉफ से किया, डॉफ का शादी टॉल से किया. मतलब क्या है, टॉल का पोलन ड्वार्फ के फ्लावर में डाला और ड्वार्फ का पोलन टॉल के फ्लावर में डाला. ओके, एंड दैट्स व्हाई इन बोथ द केसेस यू कैन सी ही गॉट द सेम रिजल्ट. एंड ही कंसिडर्ड ओनली वन और टू कैरेक्टर एट ए टाइम, क्योंकि उसके पहले जिन्होंने जितने भी जेनेटिस्ट थे या जितने भी साइंटिस्ट थे, दे यूज्ड टू कंसीडर द प्लांट एज ए होल. ओके, सेकंड है ही टुक नंबर ऑफ प्रिकॉशंस. तो पहला प्रिकॉशंस था, ही सेलेक्टेड ओनली टू ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी, प्योर वैरायटीज उन्होंने सेलेक्ट किया फॉर हिज क्रॉसेस, यानी कि प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ यू कैन से यूज किया फॉर द फर्स्ट क्रॉस. प्योर येलो की शादी प्योर ग्रीन्स के सीख की और उनको अलग अलग सेपरेट रोज में यू कैन सी ग्रो किया, ताकि यू कैन सी दे विल नॉट यू कैन सी व्हाट contaminate each other. And it also took care to avoid contamination from foreign pollen grains brought by insect by bagging the flower. तो जिन फ्लावर पे उसने पोलन ट्रांसफर किया, उस फ्लावर को इमीडिएटली ही कवर्ड विद द बैग, ताकि एक्सीडेंटली इंसेक्ट से या दूसरे जो यू कैन सी फ्लावर से एक्सीडेंटली पोलन नहीं आना चाहिए. तो नहीं तो क्या होगा, रिजल्ट जो होगा इट विल वुड हैव बीन वी कैन सी ड्रास्टिक. ओके, यानी कि यहाँ पे इंश्योर किया अरेंज मैरिज ही करना है, यानी कि जिस पेरेंट का पोलन लिया है उसको जिस फीमेल पेरेंट पे ट्रांसफर करना है. ओके, तो ही इंश्योर्ड कि यही होना चाहिए. तो उसके लिए द टेक्निक ऑफ यू कैन सी ब्रीडिंग, जिसमें आपका सबसे पहले इमैस्कुलेशन आता है, उसके बाद में बैगिंग आता है, फिर टैगिंग आता है. ओके, तो ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. तो आपको ये भी पढ़ना है एक चैप्टर में, दैट इज द प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम लोग इस स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करने वाले. फिर एनालिसिस ऑफ रिजल्ट. ओके, तो डेटा तो मिल जाएगा, इतने सारे क्रॉसेस किए, तो ही केप्ट द प्रॉपर एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द रिजल्ट. हर प्लांट जो ऑब्टेन हुआ, जितने बच्चे पैदा हुए, यू कैन सी हमने प्रीवियस जो चार्ट में देखा था, एग्जैक्टली जितने प्लांट्स प्रोड्यूस हुए 787, उतने ही उसने यू कैन सी सब का सब यू कैन सी व्हाट रिकॉर्ड रखा. इट डिड नॉट जस्ट यूज्ड ए लमसम वैल्यू, ओके, और एवरेज वैल्यू. ओके, तो प्रॉपर जो एक्चुअल यू कैन सी प्लांट्स ऑब्टेन हुए, एक्चुअल सीड्स जो प्रोड्यूस हुए, उनका रिकॉर्ड रखा. ओके, and he used the principle of arithmetics, probability and statistics because he was very good in mathematics. तो mathematics और statistics में जितने भी rules है, उन सबको use करके ही obtained the ratios. And one of the reason of his success that उन्होंने जो pea plant select किया था, वो एक perfect choice था, because pea plant was having contrasting character as we have seen, which was very easily recognized, और उसमें intermediate you can say character नहीं obtain होते थे, hybridization से भी नहीं होते थे. और दूसरा both self pollination, क्योंकि F1 जनरेशन जो है वो तो आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन से obtain होगा, लेकिन F2 जनरेशन जो है वो सेल्फ पोलिनेशन से obtain होगा. तो और पी प्लांट में जनरली सेल्फ पोलिनेशन और आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन दोनों पॉसिबल है, और इन दोनों केसेस से नेचुरली फर्टाइल हाइब्रिड्स obtain होते हैं. बिकॉज देयर आर मेनी यू कैन सी प्लांट्स जिसमें अगर सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल है तो क्रॉस पोलिनेशन पॉसिबल नहीं है, एंड अगर क्रॉस पोलिनेशन इज पॉसिबल, सेल्फ पोलिनेशन इज नॉट पॉसिबल. तो ये तो लकी कैट पी प्लांट जो है उसमें सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों पॉसिबल है. एंड देन लक फैक्टर वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग जो बाद में मालूम पड़ा कि ये सातों कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया था, दे वर कंट्रोल्ड बाय सेपरेट जीन्स. ओके, सो सिंगल फैक्टर ईच. ओके, तो बिकॉज अभी बाद में जब मेंडल के बाद में बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी मिला, तो इट वाज फाउंड दैट देयर आर सम कैरेक्टर व्हिच डिपेंड्स अपॉन टू और मोर जीन्स, और देयर आर यू कैन सी सम कैरेक्टर. ओके, तो एक ही जीन से अलग अलग कैरेक्टर्स क्या होता है कंट्रोल होते हैं. बट फॉर्चुनेटली फॉर मेंडल, whatever character he studied, all these characters were controlled by single factor, and these factors were located on different chromosomes and they were not linked with each other. क्योंकि लिंकेज मेंडल के टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन बाय फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला. ओके, तो मेंडल वाज लकी ऑन दैट पार्ट कि पी प्लांट को सिलेक्ट किया, और दूसरा उसके सारे कैरेक्टर जो स्टडी किए, दे वर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर. ओके,
चलिए, अभी लक फैक्टर में सबसे ये है कि लोकेशन ऑफ जीन ऑफ कैरेक्टर स्टडी बाय मेंडल, ये भी इंटरेस्टिंग है। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स जो स्टडी किया, ओके, इट वाज फाउंड दैट दे वर प्रेजेंट इन 4 क्रोमोसोम। तो पहले ये माना जाता था कि हर कैरेक्टर 7 अलग अलग क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, बिकॉज पी प्लांट हैज 7 पेयर्स ऑफ, यू कैन सी व्हाट, क्रोमोसोम्स। तो हर कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम्स में है, बट बाद में मालूम पड़ा कि ऐसा नहीं है। फर्स्ट क्रोमोसोम जो है उसमें कोटिलेडोन का कलर और सीड कोट का कलर के जीन प्रेजेंट है। देन फोर्थ क्रोमोसोम में पॉड शेप, स्टेम लेंथ और फ्लावर पोजीशन के जीन्स लोकेट है। फिफ्थ क्रोमोसोम में पॉड का कलर है, और सेवंथ क्रोमोसोम में जो है सीड का फॉर्मेशन का क्या है, जीन लोकेटेड है। ओके, सो दिस वाज द, यू कैन सी, डिस्कवरी आफ्टर, यू कैन सी, मेंडल। ओके, और फॉर्चुनेटली कि भले फोर्थ क्रोमोसोम में 3 अलग अलग जीन्स है, दे वर नॉट, यू कैन सी व्हाट, लिंक्ड विद ईच अदर, they were independent, and that's why Mendel was successful in getting the same result for all the 7 characters. And now we will see, तो इस ग्रेट वर्क के लिए, कमेंडेबल वर्क के लिए नेचुरली यू कैन सी मेंडल को क्रेडिट मिला। ओके, अनफॉर्चुनेटली नॉट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम बट आफ्टर डेथ। ओके, तो इस क्लासिकल वर्क को मेंडलिज्म कहते हैं। तो देयर इज स्टिल ए म्यूजियम, मेंडल म्यूजियम इन ब्रुनो, and there is a Mendel University in Brno. Okay, so this is the credit, okay, as a respect, as a gratitude which has been given for the Mendel's work. Okay, so isn't it, you can see, students, is commendable that we are fortunate to learn about the Mendel's work from the chapter Inheritance and Variation. So we will learn about, you can see, his work in more detail, because he actually used a number of new genetic terminologies, जिसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके उनके बेसिक पैटर्न को, उन्होंने जो 3 लॉज डिवाइस किए थे उसके बारे में देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे उन्होंने चेक कैसे किया कि प्योर वेराइटी कौन होता है, हाइब्रिड वेराइटी कहता है, उसको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस कहते थे। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन टू लर्न अबाउट द मेंडल्स वर्क इन मोर डिटेल। ओके ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए यू कैन सी यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। कीप वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में एक्चुअली आपके constructive, you can say, suggestions will be always welcome. Okay, and any other aspect which you want me to make the videos on, मतलब आपको कौन से videos और चाहिए, okay, किसी दूसरे aspect के, वो भी मुझे comment box में दिए। I will try to, you can say, fulfill your desires. Okay, तो आज के लिए इतना ही। Okay, bye bye students, take care.